کئی سب کلام کی تعظیم کے لیے اپنی قدموں پر کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کا جسم ایک وقت ہو جائے۔ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کتاب مقدس کو کھولیے گا۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے اور اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں جو لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر درد دے دیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ثابت ہوگی۔ آمین۔ تشریف رکھیے گا۔ خداوند یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام کرتا ہوں۔ آج جب ہم خداوند کی پاک حضوری میں اس کے حضور حاضر ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ وقت دیا تاکہ اس کے حضور جھکا جائے اور اس کے نام کی مدح افزائی کی جائے۔ اس عظیم خدا کے لیے جس نے ہمیں یہ فضل دیا تاکہ ہم آج اس گڈ فرائیڈے کی عبادت میں شریک ہو کر ان 7 صلیبی کلمات پر ہم غور و خوض کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو اپنے خدا کے حضور پیش کر سکیں تاکہ ہماری زندگیاں خدا کے نام اور اس کے جلال کا وسیلہ کر سکیں۔ آج بعد دوپہر جب ہم خدا کی پاک حضوری میں حاضر ہیں، جب ہم چاروں اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، چاروں اناجیل یسوع مسیح کے ان 7 صلیبی کلمات کو بیان کرتے ہیں، اور جب ہم ان کلمات پر غور کرتے ہیں تو یہ کلمات جو صلیب پر بولے گئے ہمیں مسیح کے ان دکھوں کی یاد دلاتے ہیں، ان غموں کو، باتوں کو یاد دلاتے ہیں جب یسوع مسیح صلیب پر بڑے کرب کی حالت میں ہے، بڑے دکھ کے اندر ہے، بڑی مشکل کی گھڑی کے اندر صلیب پر جان کنی کے عالم میں ہے اور اس صلیب کے دکھ کو وہ سہ رہے ہیں۔ تو پہلا کلمہ جو مسیح نے صلیب پر بولا، یسوع مسیح نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو یہ کلمہ گنہگاروں کی شفاعت کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا جو کلمہ ہے، دوسرا کلمہ کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ گنہگار نجات کے وارث، خدا گنہگاروں کو اپنی نجات سے ہمکنار کرتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو نجات بخشتا ہے۔ اور پھر تیسرا کلمہ جو مسیح نے صلیب پر بولا، محبت کا کلمہ ہے۔ جب یسوع کی ماں صلیب کے پاس کھڑی ہے اور اس کا شاگرد جب صلیب کے پاس کھڑا ہے تو کہا کہ اے عورت دیکھ، یہ تیرا بیٹا ہے۔ اور پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ، یہ تیری ماں ہے۔ اس وقت سے وہ شاگرد یسوع کی ماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اس کی خدمت کرنے لگا۔ اور پھر چوتھا جو کلمہ ہے، یہ نجات کا کلمہ ہے۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دی؟ جب ہم اس کلمے پر غور کرتے، جب میرے
बाप की बात के कारण यीशु मसीह पर डाली जा चुकी है, तो कलाम ये बयान करता है कि बाप अपनी निगाहें अपने बेटे से फेर लेता है। पहले जो 3 कलमात है वो रोशनी के अंदर बोलेंगे, लेकिन जब चौथा कलमा मसीह ने सिली पर बोला है तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है इससे पहले पूरे मुल्क के अंदर गहरी तारीकी छा गई है और दिखे कि सूरज ने भी अपना मुंह छुपा लिया है, इसलिए उसका मालिक उसका खालिक जो है वो सिली पर है और बड़े कर्ब के अंदर है, बड़े दुख के अंदर है और वो अपने बाप से दरख्वास्त करता है, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मेरे और आपकी गुनाह का बोझ उस पर लादल है। इस बात बाप ने अपनी निगाहें बेटे से फेरी और बेटा चलाता है और फिर 5वां जो कलमा है मसीह के दुखों को याद दिलाता है, जिस्मानी दुख का कलमा। जब हम इस बात पर गौर करते हैं, सारी रात यीशु मसीह को अदालतों के अंदर घसीटा गया, उसको मारा गया, पीटा गया और कलाम ये बयान करता है एकदम 40 कोड़े उसके पीठ पर लगाए गए, उसके बदन के अंदर रिगाड़ियां बन गई और तक उसका जो पानी है बदन का और उसका जो खून है वो बदन के अंदर से खारिज हो चुका है। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो तकरीबन 2:30 बजे के करीब यीशु मसीह अपने प्यास को जाहिर करता है कि मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह अपनी प्यास का इजहार करता है, वो जिस्मानी लिहाज से उसका बदन कमजोर हो चुका है, उसके बदन से सारा पानी निकल चुका है और उसके अंदर ये तड़प है, ये प्यास है कि उसको पानी पिलाए। अब उसके शरीर के पास है, मां उसको देख रही, लेकिन मां पानी की एक बूंद देने के लिए उसके पास जा नहीं सकती। लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात की बाबत बयान करती है, यीशु मसीह इस बात के लिए पुकारते हैं कि मैं प्यासा। और फिर छठा कलमा जो तकरीबन 3 बजे के करीब बोला, तमाम बाप वो सारे काम, वो सारी जिम्मेदारियां, वो सारे दस्तावेजात जो तूने मेरे सुपुर्द की थी, ऐ बाप खुदा, मैंने अपने खून की कीमत देकर ऐ बाप खुदा तमाम कामों को पूरे कर दिया है, मैंने तमाम काम मुकम्मल कर दिए हैं। वो जिम्मेदारियां जो ऐ बाप तूने मेरे सुपुर्द की थी, ऐ बाप खुदा, मैंने उन जिम्मेदारियों को पूरा किया है ताकि मैं तेरी पाक मर्जी को ऐ बाप खुदा अपनी जिंदगी से पूरा कर सकूं, ताकि मेरे रूह जान बदन से, मेरी जिंदगी से ऐ खुदा तेरा जलाल जाहिर हो सके। और फिर 7वां जो कलमा है, जो दोबारा मिलाप का कलमा है कि ऐ बाप, मैं आपके रूह को तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कलमा छठे कलमे के फौरी बाद यह के बाद धीरे में कलमा बोला गया और बाइबल मुकद्दस इस बात की बाबत बयान करती है कि सांप का जो अदद बाइबल मुकद्दस के
पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं 7 दिनों का जिक्र करता है कि 7 दिनों में खुदा ने कायनात को पूरा किया और 7वें दिन खुदा ने आराम किया। 6 दिन में खुदा ने जमीन आसमान कुल कायनात को खलक किया, लेकिन 7वां दिन जो खुदा ने बनाया उसने आराम किया ताकि मैं और आप भी उसमें आराम कर सके और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बन सके। और 7 आदत काबिलियत का, और जहां पर हमें देखते हैं कि बाप ने जो जिम्मेदारियां अपने बेटे को सौंपी, बेटे ने उन सारी जिम्मेदारियों काबिल तरीके से पूरा किया, उनको मुकम्मल किया है और अब वो अपनी रूह को अपने बाप के सुपुर्द करने जा रहा है। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो किताब मुकद्दस हमें इस बात की बात बयान करती है कि यीशु मसीह जो कि खुदावंद है अपनी रूह को अमानत के तौर पर अपने बाप के सुपुर्द करता है। क्योंकि जब हम अनजील का मुताला करते हैं, अनजील इस बात की बात बयान करती है, यीशु ने कहा मुझे अपनी जान को देने का इख्तियार है और अपनी जान को वापस लेने का भी इख्तियार है। और यीशु मसीह जानता है जब मैं अपनी रूह अपने बाप के सुपुर्द करता हूं, जब मैं अपने बाप से अपनी रूह को दोबारा तलब करूंगा तो मेरा बाप मेरी रूह मेरे अंदर वापस उठा देगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस हैकल को गिरा दो, मैं तीसरे रोज इस हैकल को दोबारा उठा खड़ा करूंगा। लेकिन किताब मुकद्दस इस बात की बाबत बयान करती है, यहूदी कहते हैं 46 साल इस हैकल को बनाने में लगे और ये कहता है कि मैं हैकल को 3 दिन के अंदर उठा खड़ा करूं। लेकिन यीशु मसीह ने वो यरूशलेम की हैकल की बाबत नहीं कहा, बल्कि अपने बदन की बाबत उसने कहा कि तुम इस बदन को, इस हैकल को गिरा दो, मैं तीसरे रोज इसको दोबारा उठा खड़ा करूंगा। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो किताब मुकद्दस इस बात की बात बयान करती है कि यीशु मसीह जब अपनी रूह को अपने बाप के सुपुर्द करते हैं, तो जब हम इस बात पर गौर करते हैं, रोमी दौर हुकूमत जो था, सलीबी मौत एक लंबे अरसे के लिए ये कबूल होता था। क्योंकि जब किसी को सलीब दिया जाता था तो कई के दिन जिनको सलीब पर लटकाया जाता था उनको सलीब पर रहने दिया जाता। लेकिन यहूदियों ने रोमी सल्तनत से गुजारिश की थी, अगर जब किसी शख्स को मसलूब किया जाता है, सलीब दिया जाता है, उससे अगले दिन अगर कोई खास दिन शुरू होने वाला है तो उससे पेशकर जिसको सलीब दिया जाता है उसको सलीब पर से उतारा जाता। तो कलाम जो बयान करता है कि जब यीशु मसीह को सलीब पर दिया, यीशु मसीह सलीब पर है और यीशु मसीह ऐसे ही जैसे कोई बड़ा मुजरिम सलीब पर चढ़ाया गया है। लेकिन वो मुजरिम क्यों वो मुजरिम बना हुआ है? क्योंकि मेरे और आपके जो गुनाह थे उस पर लादे जा चुके, मेरी और आपकी बात के बारे उस पर लादे जा चुकी थी, ताकि वो मेरी और आपकी बात के बारे मेरे और आपके गुनाहों को सलीब पर एक ही बार फेंक कर उन तमाम कुर्बानियों से हमें छुटकारा दे सके जो शरीयत के अंदर यहूदी कौम पर लाज़िम। लेकिन एक ही कामिल कुर्बानी, एक ही कामिल वाला जो मेरे और आपके लिए कुर्बान किया गया, ताकि एक
सलीब पर देखते हैं, जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो कलाम हमें इस बात की बाबत बयान करता है कि खुदावंद की जान देने वाली यीशु मसीह मरने के करीब, और कि वो आदमियों की तरह देखता है, जितने इंसान वहां पर खड़े वो उनकी तरफ देखते हैं और आदमियों से अपनी आखिरी बात ही कहते हैं। आखिरी कलमा जो सलीब के पास वो खड़े और उस बात का सारा माजरा देख रहे, सारे काम को वो देख रहे। तो किताब मुकद्दस बयान करती है यीशु मसीह ने आखिरी कलमा सलीब पर बोला और छठा कलमा जब बोला तमाम हुआ, तो उसके बाद फौरन ही यीशु ने अपनी जान अपने बाप पे सुपुर्द करते हुए कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि मैं एक महफूज हाथ के अंदर, मेरी रूह महफूज हाथों के अंदर। इस बात को जब हम जानते हैं, इससे पहले भी यीशु मसीह को मारने की कोशिश की गई। जब यीशु 2 साल का है, जब मजूसी यीशु को सजदा करने के लिए आते हैं, तो हेरोदेस बादशाह ने जब ये तहकीक की कि यीशु तकरीबन 2 वर्ष का हो चुका है, तो लिखा है उसने हुक्म दिया कि जितने भी इस्राएल के अंदर 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन सबको हलाक कर दिया जाए, ताकि यीशु भी उसके अंदर मारा जा सके। और फिर कई बार यीशु पर हमले किए, लेकिन यीशु का वक्त नहीं, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता था कि यीशु सलीब तक जाए, क्योंकि इब्लीस जानता था अगर यीशु मसीह सलीब पर चला गया तो मेरी शिकस्त हो जाएगी, मैं हार जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और इब्लीस इस बात से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, परेशान है, और इब्लीस इस बात से डरता हुआ, कांपता हुआ, परेशान होता हुआ इस बात के लिए वो सलीब के इर्द गिर्द घूम रहा है। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो खुदा जिसने हमें अपने कलाम की सच्चाई के वसीले से, अपने बेटे के फिलियन के वसीले से हमें माफ किया, उसने हमें छुटकारा दिया है, उसने हमें पाक किया है, ताकि हम उसके खून के वसीले से पाक किए जाएं और उसके नाम की तारीफ और उसके नाम की तमजीद करने के लायक बन सके। खुदा यीशु मसीह के अल्फाज जो यीशु ने बोले, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, ये बातें क्यों कही? पहली जो बात है कि खुदा यीशु का बाप, यीशु मसीह जानता है कि मैं अब अपने बाप के पास दोबारा जाने को, जब इन 7 सलीबी कलमात की तरतीब को लेते हैं, पहला कलमा जो मसीह ने सलीब पर बोला, बाप से मुखातिब, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि क्या करते हैं। और फिर जो चौथा कलमा है ये बिदअत का कलमा है, और जब हम इस बात पर बात करते हैं, ये कलमा जो मसीह ने सलीब पर बोला, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर 7वां जो कलमा है, ऐ बाप मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता हूं, यह भी बाप के साथ मुखातिब है। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं, मसीह की सलीब इन 7 सलीबी कलमात के अंदर हमें नजर आती है।
साथ सलीबी कलमात के अंदर देखते हैं। एक तरफ जब यीशु कह रहा है ऐ बाप इनको माफ कर, और फिर जो दरमियाना जो कलमा है साथ चौथा जो कलमा है एली लमा शब्दनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर तीसरा जो मिस्र है जो बाप के साथ मुखातिब होकर कहता है ऐ बाप मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बाकी दो कलमे इस साइड पर रह जाते हैं और दो कलमे इस साइड पर रह जाते हैं, और सलीब जो मुकम्मल हमें नजर आती है कि मसीह ने सलीब पर इन सात सलीबी कलमात का मसीह ने इजहार किया। और फिर जब हम इस बात पर गौर करते हैं, जब यीशु मसीह खुदा को अपना बाप कह रहा है, तो हमें इस बात का पता चलता जब जाना कि जिनके 20:20 आज को पढ़ते हैं, जब औरतें सुबह सवेरे कब्र पर जाती है और मरियम मगदलीनी की यीशु के साथ मुलाकात होती है और वो यीशु को छूना चाहती, तो यीशु ने कहा कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता। यीशु मसीह ने इस बात का इजहार किया कि मैं अपने बाप के पास जाता हूं, मेरा भी बाप है तुम्हारा भी बाप, और फिर अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास जाता हूं, क्योंकि यीशु मसीह बाप में से निकला था और बाप को जानता है कि बाप ने जो बड़ी जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की है, मुझे उस जिम्मेदारी को कैसे निभाना है। और फिर जब हम इस बात पर गौर करते हैं, जितने उस पर ईमान लाते हैं, क्योंकि किताब मुकद्दस इस बात के बारे में बयान करती है कि जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। हक बख्शी। अगर यीशु मसीह बाप का इकलौता बेटा है, एक ही बेटा है, लेकिन बाप ने कोई भी बेटा मेरे और आपके लिए बख्श दिया ताकि मैं और आप बाप के निर्पालित बेटे और बेटियां के रास्ते। अब यीशु अकेला नहीं, बल्कि यीशु के साथ मैं और आप भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन हम इस बात पर गौर करने की जरूरत, खुदा बाप सबका नहीं, खुदा सबका है, लेकिन बाप सबका नहीं। बाप तो उनका है जो उस पर ईमान लाते हैं, जो इस बड़ी निजात की शाबानी को अपनी जिंदगी के अंदर ले आते हैं, जो उसके बेटे यीशु मसीह पर, उसके गुफारे पर, उस बड़ी निजात पर ईमान रखते हैं, वो उनका बाप है। और मैं और आप उस बाप के बेटे और बेटियां हैं जिसने मुझे और आपको अपने बेटे यीशु मसीह के खून की कीमत देकर मोल लिया है और हमें नेपाले होने का दर्जा मिला। हम लेकर पाले गए, हम बाप के बेटे और बेटियां बन गए, ताकि हम उस बड़ी सच्चाई से वाकिफ हो सके और उस खुदा पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। और दूसरी जो बात है जो हमें सीखने की जरूरत है वो ये है कि हमारी मुश्किल और दुख की घड़ी में जब हम उसको बात कहकर पुकारते हैं, वो हमारी तरफ मुतवज्जो हो गया, वो हमारी सुनता है और वो हमें जवाब देता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह जब पुकारता है कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, बड़े दुख और बड़ी तकलीफ के अंदर, बड़े गर्व के अंदर यीशु मसीह इन मुश्किलात को सह बर्दाश्त करें, उन दुखों को बर्दाश्त करके सलीब पर यीशु मसीह का बदन तना हुआ
بدن سے نکل چکا ہے اور کتاب مقدس اس بات کی بابت بیان کرتی ہے. باپ سے درخواست کرتا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. کیونکہ بیٹا جانتا ہے کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپاتی ہے, مرغی اپنے بچوں اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی, ویسے ہی میرا باپ بھی مجھے تمام تکلیفوں سے, دکھوں سے, مشکلات سے رہائی دینے میں قادر ہے. اب وہ قدرت کرتا ہے, اور جب ہم اس خدا کی اصلی قوت کو اپنی زندگی کے اندر جان جاتے ہیں تو ہم اس کی اس حفاظت کو جب وہ ہم پر کرتا ہے, ہماری حفاظت کرتا ہے, ہماری حفاظت کا وہ تحفظ دیتا ہے کہ میں تمہارا محافظ ہوں. تو میرے عزیزو, جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں, آخر میں جب ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں, اس بات پر جو مسیح نے کی, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, اس بات کو خوشی محسوس کرتا ہوں. ہر مشکل, درد اور خطرے میں خدا نے اپنے کو سکون محسوس کرتا ہے. بیٹا جو ہے اپنی زندگی کے اندر سکون محسوس کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اب میں نے اپنی روح کو اپنے باپ کے حوالے کر دیا ہے, اور میرا باپ میری روح کی, میری جان کی, میرے پورے بدن کی حفاظت کرے. اور ایسے ہی ضرورت ہے کہ ہم پھر جب ہم کمزوری میں, ہم مشکل کے اندر, پریشانی کے اندر, ہم اپنے باپ کو پکاریں, ہم اس سے درخواست کریں. جب خطرات کے اندر ہوں, اس سے کہیں کہ باپ میں اپنی روح جان بدن کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں, تو میرا محافظ ہے, تو میرا رکھوالا ہے, تو میری جان کا رکھ. اب آؤ زبور 23 کے اندر اس بات کی بابت بیان کرتا ہوں, کہتا ہے بلکہ ہم موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہوں, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تو میری جان کا محافظ ہے, تو میرے ساتھ, تو میری زندگی کا محافظ. اس لیے داؤد اس بات کا اقرار کرتا ہے, اظہار کرتا ہے, اور یسوع مسیح بھی اس ایمان کے ساتھ اپنی روح کو اپنے باپ کے سپرد کر رہا ہے. اے میرے خدا, اے باپ میں اپنی روح کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور لکھا ہے کہ یہ کہہ کر مسیح نے اپنی جان میں آج 12 صبح جب ہم خدا کی پاک رسول میں حاضر ہیں, اس بڑے کفارے کی, اس بڑی قربانی کی جو خدا یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر دے دی, تاکہ میں اور آپ بچ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. اس بڑے کفارے کے لیے, اس بڑی قربانی کے لیے آئے ہم اس قادر مطلق خدا کی شکر گزاری کریں, اور بھرپور کاریاں بتائیں کر اس بڑے کفارے کے لیے, اس بڑی کتاب کے لیے, اس بڑی شاہکاری کے لیے جو اس نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے, ہم اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کے نام کو بڑھا اور عزت قرآن کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا عزیز اور شادمانی کا وسیلہ کرے. آمین.